الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ان 2 آیات کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ متقی لوگ جن کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف نازل کردہ وحی پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی یعنی کتاب اللہ اور قرآن کریم، اس پر ایمان لانے کے عقیدے کو بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں دنیا کے اندر اتاری گئیں، جن میں سے 3 کتابیں بڑی کتابیں کہلاتی ہیں، 3 آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل، اور 4تھی کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر صحیفوں کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں، جس طرح کہ خود قرآن کریم کے اندر مذکور ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔
यानी इन 4 बड़ी आसमानी किताबों के अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से छोटी छोटी किताबें या रसाइल या उनको सहीफे कहा जाता है वो उतारे। लेकिन 4 बड़ी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान 4 आसमानी किताबें हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और कुरान करीम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तो ये 4 बड़ी किताबों का जिक्र कुरान करीम में और अहादीस मुबारक के अंदर मौजूद है और वही इस आयत करीमा के अंदर मुराद है कि जो लोग आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान करीम पर ईमान रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली किताबों यानी तौरात, ज़बूर और इंजील पर भी ईमान रखते हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये 2 जलीलुल क़दर सहाबा फरमाते हैं कि पिछली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब के ज़िमन में ये जिक्र फरमाया था कि जो मुत्तकी हैं वो गैब पर ईमान लाते हैं और गैब के ज़िमन में तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना भी शामिल था। तो बज़ाहिर इस आयत करीमा में इस बात को बयान करने की ज़रूरत नहीं थी कि जो मुत्तकी हैं वो कुरान करीम पर और गुज़िश्ता आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मुकर्रर बयान फरमाया। उसकी वजह यह है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले 2 तरह के लोग थे, 2 किस्म के लोग थे। एक तबका वो था जो मुशरिकीन थे और मुशरिकीन से दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और मुसलमान हुए, और दूसरे वो लोग थे जो अहले किताब यहूद और नसारा थे और अहले किताब होने की हालत से अहले इस्लाम में दाखिल हुए यानी मुसलमान हुए। तो पहली आयत के अंदर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बगैर देखे अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा तमाम गैबी उलूम पर ईमान रखते हैं, उसमें इशारा उन लोगों की तरफ था जो मुशरिकीन से मुसलमान हुए थे। और इस आयत नंबर 4 के अंदर इशारा उन लोगों की तरफ है जो अहले किताब यहूद और नसारा थे और अहले किताब होने की हालत से अहले इस्लाम में शामिल हुए, अहले इस्लाम में दाखिल हुए। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने के लिए हाजिर हुए कि मैं देखता हूँ कि ये कौन सा नबी है, कौन सा आदमी है जिसने नबूवत का दावा किया है। लेकिन जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके चेहरा अनवर को देखा तो फरमाया कि ऐसा चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, और फौरन कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। तो इस आयत नंबर 4 में उन असहाब की तरफ इशारा है जो अहले किताब या तो यहूदी थे या नसरानी थे और फिर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। तो उनके बारे में फरमाया गया कि इनको दोहरा शरफ हासिल है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब पर भी ईमान लाए और इससे पहले आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते रहे, ईमान ला चुके थे। तो इनको ये दोहरा शरफ, दोहरा मर्तबा और दोहरा मकाम हासिल हुआ, तो इसलिए इनको सवाब भी दुगना मिलेगा। यानी कुरान करीम में एक दूसरे मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सराहतन वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जो अहले किताब मुसलमान होने से पहले
अपनी अपनी शरीयत पर, चाहे तौरात पर या इंजील पर अमल करने वाले थे, मुसलमान होने के बाद उनको अपनी शरीयत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा और दीन इस्लाम की शरीयत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने दोहरी शरीयत पर अमल किया। पहले आसमानी किताब पर अमल करते रहे और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आखिरी आसमानी किताब कुरान करीम पर ईमान लाकर कुरान करीम के अहकाम पर भी अमल करते रहे। तो इन लोगों ने दो शरीयतों पर अमल किया, दो किताबों पर ईमान लाए, तो इनके लिए सवाब भी दूसरों से दुगना है, दूसरों से ज्यादा है। तो इस आयत करीमा में उनका जिक्र किया गया। आगे फरमाया कि वबिल आखिरती हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यानी यहाँ पर एक और अकीदा बयान फरमाया गया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिन देखे मानते हैं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं, वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। इससे पहले वाली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने युमिनूना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आयत नंबर 3 में भी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, और आयत नंबर 4 में भी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब पर ईमान लाते हैं और आपसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल की गई उन पर ईमान लाते हैं। तो इन दोनों आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान का जिक्र फरमाया कि वो ईमान लाते हैं, लेकिन आखिरत के लिए यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसकी वजह मुफस्सिरीन कराम ने यह बयान फरमाई कि यकीन और ईमान में थोड़ा सा फ़र्क है। ईमान उसको कहा जाता है कि किसी दूसरे शख्स की बात को उसी के भरोसे पर मान लेना, कि चूंकि हम इस आदमी को सच्चा समझते हैं तो जो खबर ये हमें दे रहा है, जो बात हमें कह रहा है, वो बात भी सच्ची होगी। और यकीन उसको कहा जाता है कि जिसके बारे में इंसान अपने होशो हवास, अपने हवास खमसा, अपनी अक्ल का भी उसके अंदर इस्तेमाल करे, फिर दूसरे की बात के ऊपर यकीन करे कि हाँ, जो ये बात ये कह रहा है वाकई ये बात वज़न रखती है और ये वाकई ऐसी बात है कि जिसको मानना चाहिए, जो काबिल तस्लीम और काबिल यकीन बात है। तो आखिरत के लिए यकीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि आखिरत पर ही तमाम दीन का मदार है, यानी पूरे का पूरा दीन का जो मदार और इन्हिसार है वो अकीदा आखिरत के ऊपर है। अगर किसी शख्स का आखिरत के दिन पर ईमान होगा तो उसके बकिया अकायद का एतबार होगा और उसके बकिया अमाल का एतबार होगा। और अगर एक शख्स आखिरत पर ही यकीन नहीं रखता और वो ये समझता है कि दुनिया की ज़िंदगी ही सब कुछ है और आखिरत कुछ भी नहीं है, मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई वजूद नहीं है, तो अब उसका कुरान करीम पर ईमान लाना या पहली आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के नबी पर ईमान लाना और नमाज पढ़ना, नेक अमाल करना, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल लग़्व, बेकार और फजूल हो जाएंगी, क्योंकि ईमान का ताल्लुक और तमाम आमाल सालिहा का ताल्लुक असल में आखिरत के साथ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि जो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, फरिश्तों पर और दीगर अकायद इस्लाम पर ईमान लाएगा तो आखिरत में उसके लिए ये अजर व सवाब होगा। और जो नमाज पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, रोज़ा रखेगा और दीगर इबादत करेगा, आखिरत में उसको ये अजर व सवाब दिया जाएगा। तो तमाम कामों का इन्हिसार जो है वो असल में अकीदा आखिरत के ऊपर है।